Good evening, everyone. Welcome to today's lecture. And today's lecture is about cleavage and patterns of cleavage. Without wasting time, let's start. Cleavage. Cleavage divisions are rapid mitotic divisions abolishing the gap periods of the cell cycle, the G1 and G2 phases. Means these divisions are the cycles of S phase where DNA synthesis occurs, and M phase. This corresponds to the actual cell division. For example, a frog egg can divide into 37,000 cells in just 43 hours. Mitosis in cleavage state Drosophila embryos occur every 10 minutes for more than 2 hours, forming some 50,000 cells in just 12 hours. Cells in the cleavage state are called the blastomeres. In most animal species, mammals being the chief exception, both the initial rate of the cell division and the placement of the blastomeres with respect to the one another are under the control of the maternal factors. And those factors, they are proteins and mRNA stored in the oocyte. Only later the rate of the cell division and the placement of the cells come under the control of the newly formed organisms ऑन जीनोम. दिस इज कॉल्ड द zygotic genome. यानी क्या होता है यहाँ पे जो अर्ली स्टेज ऑफ डिविजन्स होते हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैटरनल फैक्टर्स, एंड दोज मैटरनल फैक्टर्स दे इंक्लूड प्रोटीन्स एंड mRNA. अब उसके बाद क्या होता है, जो ही अर्ली स्टेज जब पास हो जाते हैं, लेटर स्टेज में क्या होता है, लेटर स्टेज में यानी व्हेन द मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन ऑकर्स, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जो ये जाइगोट का जो अपना जीनोम होता है, दैट अंडरगोज एक्सप्रेशन. यानी उसकी फिर एक्सप्रेशन हो जाती है, यानी वहाँ से फिर mRNA बनता है और mRNA से फिर प्रोटीन्स बनते हैं, एंड दे देन कंट्रोल द रेट ऑफ सेल डिवीजन एंड प्लेसमेंट ऑफ द ब्लास्टोमेयर्स. ठीक है, लेटर स्टेज में. चलिए ठीक है. तो during the initial phase of the development, when cleavage rhythms are controlled by the maternal factors, cytoplasm volume does not increase. The pattern of embryonic cleavage peculiar to a species is determined by two major parameters: the amount and distribution of the York protein within the cytoplasm, which determine where cleavage can occur, and the relative sizes of the blastomeres. Second important factor is factors in the egg cytoplasm that influence the angle of the mitotic spindles and the timing of its formation. In general, York impedes cleavage. When one pole of the egg is relatively York free, cellular divisions occur there at a faster rate than at the opposite pole. The York rich pole is referred to as the vegetal pole. The York concentration in the animal pole is relatively low. The zygote nucleus is frequently displaced towards the animal pole. It means अगर हम इसको ऐसे देखें तो लेट्स इमेजिन अ एग. ठीक है, अब उस एग में क्या होता है, उस एग में दो पोल्स होते हैं. वन वी हैव जो पहला पोल होता है उसको हम कहते हैं वेजिटल पोल, और जो दूसरा पोल होता है उसको हम एनिमल पोल कहते हैं. अब वेजिटल पोल पे क्या होता है, यूजुअली द एग यॉर्क इज कंसनट्रेटेड एट दैट पोल. यानी वेजिटल पोल पे क्या होता है, वेजिटल पोल पे होता है यॉर्क कंसनट्रेट. ठीक है, अब जो एनिमल पोल होता है, एनिमल पोल पे क्या होता है, एनिमल पोल पे यॉर्क की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है, और वहाँ पे जो डिविजन्स होते हैं, जो वहाँ पे क्लीवेज होता है, क्लीवेज इज एक्चुअली कन्फाइंड टू द एनिमल पोल ऑफ द zygote. ठीक है, द zygote nucleus is frequently displaced towards the animal pole. अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो क्लीवेज वहाँ पे हो जाते हैं. ठीक है, सेकंड थिंग इज जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है वो भी डिस्प्लेस होता है, कहाँ, किसकी तरफ, एनिमल पोल की तरफ वो डिस्प्लेस होता है. ठीक है, चलें ठीक, तो इसको हम देखें. अब ये जो ये टेबल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज CSIR UGC नेट इज़ कंसर्न. ठीक है, इसमें से तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं. तो इसको हम कैसे समझे, इसको हम देखेंगे. पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसको हम कैसे ट्रुक से याद रख सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो क्लीवेज होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, या तो हालोब्लास्टिक क्लीवेज होगा या तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा. दिस इज हालोब्लास्टिक क्लीवेज. ठीक है, एंड सेकंड टाइप इज वी हैव मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. अच्छा, हालोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है, यहाँ पे जो ये यॉर्क होता है, यॉर्क विच एक्चुअली इम्पीड्स द सेल डिवीजन. ठीक है, तो वो थोड़ा सा यॉर्क होता है यहाँ पे, और दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड.
क्या होता है यहाँ पे, ये जो यॉक होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है एग में। मान लो कि ये एक एग है, उसमें क्या होगा, इसमें जो यॉक होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेकंड थिंग इज इसमें थोड़ा सा यॉक होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब जो ये है हालोब्लास्ट क्लीवेज। अब जो दूसरा टाइप है वो है मीरोब्लास्ट क्लीवेज। मीरोब्लास्ट क्लीवेज में क्या होता है, यहाँ पे यॉक होता है, यहाँ पे डेंस यॉक होता है, और वो यॉक कहाँ पे होगा, या तो वो यॉक कहाँ पे होगा, या तो वो जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल होता है, या मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द जाइगोट जो होता है, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द यॉक, ठीक है। तो या तो वो यहाँ पे होगा, मतलब इस साइड में होगा, पूरे एग में होगा, यानी थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन ऐसे यॉक फ्री होगा, ठीक है, डिस्क शेप्ड पोर्शन यहाँ पे होगा विच इज़ यॉक फ्री, ठीक है। या तो ये कहाँ पे होगा, या तो ये सेंटर में होगा, या तो कहीं और पे होगा, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लेंगे हालोब्लास्ट क्लीवेज। जो हालोब्लास्ट क्लीवेज में क्या होता है, हालोब्लास्ट क्लीवेज में हमने देखा है अगर ये एग है तो इस एग में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड याक होगा, और वो जो याक होगा वो थोड़ा सा होगा, उतना नहीं होगा, ठीक है। अब हालोब्लास्ट क्लीवेज में हमारे पास दो टाइप्स है, या तो आइसोलिस्टल एग्स होंगे वो, या तो वो मीजोलिस्टल एग्स होंगे। एज पर एज यॉक इज कंसर्न्ड, आइसोलिस्टल का मतलब है यहाँ पे, जो आइसो का मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा याक यहाँ पे, ठीक है। तो याक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो आइसोलिस्टल एग्स उनको हम कहते हैं, ठीक है। मीजोलिस्टल का मतलब है यहाँ पे याक मॉडरेट होगा, उतना नहीं होगा, यानी मॉडरेट अमाउंट ऑफ याक होगा यहाँ पे, यानी वो जो मॉडरेट अमाउंट ऑफ याक होगा, मतलब थोड़ा सा याक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा होगा, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा याक, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। आइसोलिसिस एग्स में हम देखते हैं यहाँ पे, फिर हमारे पास जो क्लीवेज होते हैं, क्लीवेज पैटर्न जो होते हैं, वो हैव रेडियल क्लीवेज, वी हैव देन स्पाइरल क्लीवेज, उसके बाद बायलेटरल क्लीवेज, और यहाँ पे चौथा टाइप हमारे पास है रोटेशनल क्लीवेज। यहाँ पे जो मीसोलिस्थल एग्स होंगे तो उसमें एक ही पैटर्न ऑफ क्लीवेज है, एंड वी हैव रेडियल क्लीवेज, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रखें, अच्छा इनको हमने यहाँ पे समझना नहीं है, हम इसको समझ सकते हैं बाय रीडिंग बुक्स, ठीक है, तो उससे हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एज पर एज CSIR पॉइंट ऑफ व्यू में हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने क्या चीज़ देखना होता है, वहाँ पे हमने देखना होता है कि इसको हम कैसे मेमोराइज़ करें, ठीक है। तो मेमोराइज़ का तरीका जो है वो है ये निमोनिक, मैंने एक बनाया है यहाँ पे, और वो निमोनिक क्या है, वो निमोनिक ये है, ठीक है। एंड देन आई हैव मेड अ सेंटेंस, एंड द सेंटेंस इज आई रोर एन इको सिंस अ मैन फ्लोट्स बी टाइट रोटेशंस में नैरो, यानी इसका मतलब है, यानी दिस इज़ ए पार्ट इज़ दिस, ठीक है, दिस इज़ ए पार्ट, एंड यहाँ पे ए हमने लिखा है। तो उसके बाद है आई का मतलब है आइसोलिस्टल, और रोर का मतलब है यहाँ पे रोटेशनल है, एन का मतलब है, मतलब एन का मतलब है एम्फिक्सस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ए एम है, तो यहाँ पे हमने याद रखना है ये असल में ए एन नहीं है, ये ए एम है, ये चीज़ हमने यहाँ पे याद रखना है, दिस इज़ ए एम, असल में यहाँ पे एम्फिक्सस है, ए एम है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए एन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे ये असल में एन नहीं है, ये यहाँ पे एम है, ठीक है। तो आई रोर एन, एन मीनस एन, इसका मतलब है एम्फिक्सस, ठीक है। इको का मतलब है इकानोडर्मस, ठीक है। सिंस का मतलब है यहाँ पे स्पाइरल, ए का मतलब है यहाँ पे एनालिटिस, एंड वी देन हैव मैन मीनस मोलास्कस, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट्स का मतलब है यहाँ पे फ्लैट वर्म्स, we then have b it means यहाँ पे है we have bilateral, and then tight tunicates, this rotations it corresponds to rotational, ठीक है। तो we then have may it means mammals, and narrow it means what nematodes, ठीक है। तो हो गया ये। अब जो दूसरा पार्ट है बी पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट यानी मीजोलिस्थल एग्स, वी हैव मैसी, इट इज़ मैसी, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है। तो मैसी rears amphibians, मैसी we have rears it corresponds to what, it corresponds to radial, and we have amphibians means amphibians, ठीक है। hope this is clear to you. Now we'll move on. सेकेंड टाइप वी हैव मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक में क्या होता है, ये हमने अभी देखा है कि यहाँ पे डेंस यॉक होता है। तो इसमें हमारे पास जो टाइप्स हैं वो दो है, टीलोलिस्थल एग्स एंड वी देन हैव सेंट्रोलिस्थल एग्स। टीलोलिस्थल में फिर हमारे पास यहाँ पे बायलेटरल क्लीवेज है, और दूसरा जो है वो है डिस्क्वाइडल क्लीवेज। एंड बायलेटरल क्लीवेज में किन किन में होता है, बायलेटरल क्लीवेज होता है सेफेलोपोड्स में, वी हैव मोलास्कस, ठीक है, यानी सेफेलोपोड मोलास्कस में होता है ये, सेफेलोपोड मोलास्कस में होता है ये।
ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव डिस्क्वाइडल क्लीवेज जो है दैट ऑकर्स इन फिशेस, reptiles and then birds. Central listal eggs, we have special type of cleavage here, and that cleavage is called superficial cleavage. यहाँ पे central listal eggs में क्या होता है, यहाँ पे जो egg होता है यानी उसमें जो ये यॉक होता है, यॉक इज एक्चुअली डिपॉजिटेड इन द सेंटर ऑफ द एग। तो यहाँ पे जो क्लिवेज होगी वो खाली रिम ऑफ द एग पे होगी, एंड व्हेन द क्लिवेज ऑकर्स एट द रिम ऑफ द एग दैट वी कॉल द सुपरफिशियल क्लिवेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो है हमारे पास मोस्ट इंसेक्ट्स। अब इसके लिए भी जो हमने निमोनिक बनाया है वो निमोनिक क्या है, वो यहाँ पे ए है ये टीलोलिस्टल एग्स के लिए। ठीक है, एंड वी देन हैव बी इज हियर दिस थिंग। ठीक है, सेंट्रोलिस्टल एग्स। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया है यहाँ पे, और उस सेंटेंस से हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। वो सेंटेंस क्या है, वी हैव टीलो मीन्स टेल्ड बिग कैट्स, माउसेस, डायनासोर्स, फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स कैन सुपर इम्पोज मोस्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे टेल्ड का मतलब है टीलोलिस्टल, यहाँ पे बिग का मतलब है वी हैव बाइलेटरल, वी हैव कैट्स, कैट्स, माउसेस, वी हैव सेफेलोपोड, मोलस्कस। ठीक है, कैट्स, माउसेस। उसके बाद है डिस्क्वाइडल, अगर हम देखेंगे यहाँ पे है डिस्क्वाइडल का मतलब है यहाँ पे डायनासोर्स है। ठीक है, तो वी देन हैव फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स कैन, सेंट्रोलिस्टल कैन इट मीन्स सेंट्रोलिस्टल, and we then have superimpose corresponds to what, it corresponds to superficial, and most insects is most insect यहाँ पे। ठीक है, hope this is clear to you। तो ठीक है, हाँ, थैंक यू वेरी मच।